وہ لاہور کے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت مال کا اندرونی منظر تھا، جہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کی پرسکون گہما گہمی تھی۔ مال میں ہونے کے باوجود شور کم تھا، ہر طرف ایک نفاست اور خاموشی کا احساس تھا۔ ایک کونے میں موجود جیولری کی ایک نفیس دکان کے سامنے کھڑی آئزل نے قیمتی ہار اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ سرخ یاقوت اس کی گردن پر مزید چمکنے لگے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خوشی سے پیچھے مڑی اور اپنی کزن رائما کی طرف دیکھا۔ بتاؤ، یہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ بہت پیارا ہے، اور تم پر تو بہت زیادہ جچ بھی رہا ہے، رائما نے جوشیلے انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، اسے ہی پیک کروا لیتے ہیں۔ آئزل نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے ہار اتار کر دکاندار کو دیا اور کہا، اسے پیک کر دے۔ دکاندار نے مؤدبانہ انداز میں ہار لیا اور پیکنگ کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ ہار کی بلنگ کروانے کے بعد وہ دونوں سیدھا فوڈ سیکشن کی طرف بڑھے۔ بہت بھوک لگی ہے یار، میں تو پلیٹر منگوانے والی ہوں، آئزل دھپ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کب بھوک نہیں لگتی، بھوکڑ کہیں کی؟ رائما اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں بہت کھاتی ہوں۔ آئزل نے ناراضگی سے مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے رائما کو بولا۔ جی، آپ کہاں کھاتی ہیں؟ بس 2 گھنٹے پہلے ناشتے میں 2 چیز سینڈوچ اور نہاری 2 نان کھا کر ہی تو آئی ہیں آپ۔ رائما نے طنز کیا۔ ہاں تو 2 گھنٹے پہلے کھایا تھا نا، اب تک تو ہضم بھی ہو گیا۔ آئزل نے فوراً ویٹر کو بلوا لیا اور 2 کنگ سائز برگر، ساتھ میں چائنیز اور ایک پلیٹر بھی منگوا لیا۔ رائما نے صرف ایک برگر پر اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر میں جب کھانا سرو ہوا تو آئزل کی تیزی دیکھنے لائق تھی۔ وہ صدیوں کے بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ رائما اسے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آئزل ان لوگوں میں سے تھی جو جتنا مرضی کھا لے مگر انہیں لگتا بھی نہیں تھا۔ اس کی دبلی پتلی صحت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ بہت زیادہ کھاتی ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شرارتی بھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آئزل کو کافی بھی پینی تھی۔ وہ ڈسپوزیبل کپس میں کافی لے کر ریسٹورنٹ کے دروازے سے نکل ہی رہی تھی کہ تبھی آئزل کا ٹکراؤ ایک لمبے قد کے آدمی سے ہوا۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے کیا؟ آئزل کو اپنی کافی گر جانے کا افسوس تھا، جبکہ رائما اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کی قمیض پر کافی گری تھی۔ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین حدید ملک تھا، جس کی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ رائما اسے جانتی تھی کیونکہ وہ اسی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ البتہ آئزل کو صرف کھانے پینے کی چیزوں کا ہی پتا ہوتا تھا۔ میں اندھا نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو کم دکھائی دیتا ہے، حدید نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آئزل نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ ایک تو آپ نے میری کافی گرا دی، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ دیکھیں مس، غلطی آپ کی ہے، حدید نے انتہائی ضبط سے کہا۔ اس سے پہلے کہ آئزل مزید اس سے جھگڑتی، رائما ایک دم سامنے آ گئی۔ السلام علیکم سر، یہ میری کزن ہے، میں اسی طرف سے سوری کرتی ہوں، آپ اس کی باتوں کو برا مت بنائیں۔ وہ حدید کے غصے سے واقف تھی، اس لیے آئزل کو بچا رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ حدید کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ ہم کس لیے سوری بولے؟ ہاں، دیکھ کر یہ نہیں چل رہے تھے۔ آئزل کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ رائما اس کا بازو پکڑ کر اس کے کان میں بولی، بے وقوف، وہ میرے باس ہیں، چپ کرو، مزید کچھ نہ کہنا۔ باس ہیں تو میں کیا کروں؟ ان سے کہو میری کافی لے کر دیں جو ان کی وجہ سے گری ہے۔ آئزل نے منہ بسورتے ہوئے سر جھٹکا۔ اس کے کندھوں پر تک کٹے بال ایک لہر میں ہلے تھے اور حدید ملک چند پلوں کے لیے رک سا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو آئزل، پاگل ہو گئی ہو؟ رائما نے دان پیستے اسے گورا، پھر حدید کی جانب مڑی۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے، آپ اس کی بات۔ رائما کو چپ ہونا پڑا کیونکہ حدید نے اگلا جملہ کہا تھا، میں کافی لے کر دیتا ہوں۔ ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے سر۔ رائما نے شرمندگی سے آئزل کو دیکھا جو اب غصے میں تھی۔ ضرورت ہے، میں لے کر دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا کافی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ 2 کافی کپس کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ آپ کی کافی؟ ایک کپ آئزل کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرایا۔ آئزل نے اترا کر کپ لے لیا، البتہ رائما نے شکریہ کہا۔ تمہیں شکریہ کہنا چاہیے آئزل، رائما نے اسے یاد دلایا۔ شکریہ کس بات کا؟ گرائی بھی تو انہوں نے تھی نا، وہ اترا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ رائما ایک بار پھر معذرت کرتی اس کے ساتھ آئی۔ حدید وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ حدید ملک اپنے شاندار آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار دیوار سے لگی لاہور کی وسیع پینورالم تصویر پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جلتی سگریٹ تھی جس کا دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کر تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت مال کا ہنگامہ نہیں بلکہ خوبصورت اور غسیلا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور ایک گہری سانس باہر نکالی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں آئزل کا نقشہ بن رہا تھا، اس کی بڑی غصے سے بھری آنکھیں جو اسے گھور رہی تھی،
और फिर उसके कंधों तक कटे बालों का लहराना। जब उसने सर झटका था, उसे याद था कि कैसे वो चंद लम्हों के लिए ठटक कर उसे देखता रह गया था। उसका गुस्सा भी अनोखा था, एक मासूमाना शरारत बड़ी थी। अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते क्या? आइजल के अल्फाज उसके कानों में गूंजे और उसके चेहरे पर एक पतली सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे याद करके हंस दिया कि कैसे वो इतरा कर कॉफी का कप लेकर चली गई थी। ऐसी लापरवाही और खुद एतमादी उसने कम ही लड़कियों में देखी थी। उसने मेज पर रखे फोन की तरफ देखा। आज राइमा की छुट्टी थी। अगर वो ऑफिस में होती तो इससे आइजल के बारे में जरूर मालूम करता। राइमा जो उसके ऑफिस में एक मुख्ती मुलाजमा थी, जो बड़ी मुश्किल मुश्किल से आइजल को रोक रही थी। पागल हो गया राइमा, जिसने आइजल के कान में सरगोशी की थी। हदीद को याद था कि उस समय आइजल ने कैसे गुस्से से सुगूरा था। हदीद ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। उसे शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका जहन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार आइसल की बातों, उसके लहजे और उसकी अदाओं को याद कर रहा था। ये कैसी कशिश थी जो उसे बेकरार कर रही थी। उसने फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी को कॉल की। मिस्टर अहमद को बताएं कि आज की तमाम मीटिंग कैंसिल कर दी जाए। मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। सेक्रेटरी ने हैरत से कहा, सर, लेकिन आज आपकी दुबई के क्लाइंट्स के साथ अहम मीटिंग थी, कैंसिल कर दे। हदीद ने सख्त लहजे में कहा, और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने फोन रख दिया और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आइजल के बारे में मजीद जानना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ एक इत्तफाकी मुलाकात नहीं थी। डिफेंस में वाक़या रोशन बोर्ड वाले बड़े से घर में, जिसके लॉन में हरे बड़े पौधे लहलहा रहे थे। जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी थी। ऊपर वाली मंजिल पर राइमा की वालदा यानी आइजल की ताइमा रहाइश पजीर थी, जबकि निचली मंजिल पर आइजल अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके दो भाई थे, जबकि राइमा इकलौती थी। इस वक्त राइमा आइजल की वसी और इस कमरे में मौजूद थी, जहाँ हर चीज सलीके से सजी थी। राइमा गुस्से से बिस्तर में बैठी आइजल को घूर रही थी, जो लापरवाही से अपने फोन पर गेम खेलने में मसरूफ थी। आइजल, तुमने हदीद मलिक से ऐसी बदतमीजी की हिम्मत कैसे की? राइमा की आवाज में परेशानी और गुस्सा नमाया था। आइजल ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई पर वापस फोन पर झुक गई। कौन हदीद मलिक और कैसी बदतमीजी? उसने ऐसे कहा जैसे कुछ उसे याद ही ना हो। राइमा ने गुस्से से उसके हाथ से फोन छीन लिया। तुम्हें वाकई याद नहीं मॉल में जो कुछ हुआ? मेरी तो रूह काम गई थी जब तुमने उसे अंधा कहा था। वो लाहौर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है आइजल। आइजल ने कंधे उचकाए। ओ, वो सूट वाला अंकल? वो बिजनेसमैन होगा तो इससे क्या? उसने मेरी कॉफी गिराई थी और गलती उसी की थी। अंकल? राहिमा को मुंह हैरत से खुला रह गया। वो मेरा बॉस है आइजल, और इतनी हैंडसम आदमी को तुम अंकल कह रही हो? तुम जानती हो वो अमीर है और लड़कियों में कितना मशहूर है। शुक्र करो उसे गुस्सा नहीं आया। अगर उसे गुस्सा आ जाता तो तुम नहीं जानती वो क्या करता। तो क्या हो जाता? आइजल अब भी लापरवाह थी। ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉफी वापस लेकर देता, जिसने किया भी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। उठकर अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई और बाल संवारने लगी। तुम्हें लगता है कि ये कोई मामूली बात है? राइमा उसके पीछे आई। वो इतना ताकतवर आदमी आइजल, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। तुम्हें पता है वो कितना सख्त है, एक भी गलती माफ नहीं करता। आइजल ने आईने में देखकर मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हारी नौकरी की वजह से तुम मुझ पर इतनी खफा हो रही हो? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बॉस कुछ नहीं कह सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम नहीं समझोगी। राइमा ने गहरी सांस ली। तुम्हें हमेशा सब कुछ मजाक लगता है, और ऐसे लोग नहीं है वो जिनसे तुम ऐसे बात करो। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उसने तुम्हें कॉफी ला कर दी। हाँ, शायद वो मुतासिर हो गया हो। आइजल ने शरारत से आंख मारी। इतनी खूबसूरत लड़की से टकराकर किसका दिल नहीं पिघलेगा। रायमा ने अपना माथा पीट लिया। आइजल, प्लीज सीरियस हो जाओ। तुम्हें नहीं पता मैं इस वक्त कितनी परेशान हो गई थी। तुम्हारी ये बेफिक्री किसी दिन तुम्हें मुश्किल में डालेगी। अच्छा बाबा, आईना से मैं अंकल हदीद को देखकर चलूंगी, ताकि उन पर कॉफी ना गिरे। आइजल ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा और हंस पड़ी। राइमा ने हार मान ली थी। वो जानती थी कि आइजल अपनी बातों को कभी संजीदगी से नहीं लेती थी, लेकिन राइमा के दिल में एक बेचैनी बैठी हुई थी। ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना आइजल समझ रही थी। जो मर्जी आए करो, बाद में कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। उसे धमकाती कमरे से निकल गई। अगले दिन राइमा के दिल में धक धक हो रही थी, जैसे वो किसी जुर्म के बाद पहली बार अदालत जा रही हो। उसे यकीन था कि आज
حدید ملک اسے خوب سنانے والا ہے۔ آفس کی راہداری میں ہر قدم اس کا دل دہلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آئزل کی باتیں اور حدید ملک کا غصہ گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے کیبنز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر حدید ملک کا نام چمک رہا تھا۔ رائما کی تو جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، جی سر۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ رائما، میرے آفس میں آؤ۔ حدید کی آواز میں ایک غیر معمولی نرمی تھی۔ اس نرمی نے رائما کو مزید چونکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے حدید کے آفس کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم سیسے کے ہو رہے تھے۔ آفس کا دروازہ کھلا تو حدید اسے اپنی کرسی پر بیٹھا مسکراتے ہوئے نظر آیا۔ آؤ مس رائما، بیٹھو۔ حدید نے اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ رائما ہچکچاتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی سر، کیسی ہیں آپ؟ حدید نے مسکراتے ہوئے رائما سے پوچھا۔ رائما حیران رہ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں سر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حدید کا یہ رویہ کیسا ہے، کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ آپ نے میرے لیے جو پروجیکٹ کی رپورٹ تیار کی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ حدید نے بات کا آغاز کیا کام سے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدید نے کچھ دیر پروجیکٹ کے بارے میں ہدایت دی اور پھر رائما پوری توجہ سے سنتی رہی۔ جب کام کی بات ختم ہوئی تو حدید نے نظریں اٹھا کر رائما کی طرف دیکھا۔ اچھا، وہ آپ کی کزن کیسی ہے؟ حدید نے اچانک پوچھا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ رائما کا دل زور سے دھڑکا۔ سر وہ ٹھیک ہے۔ اسے عجیب سا لگا کہ حدید آئزل کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کا؟ حدید نے سرسری انداز میں پوچھا، جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر آئزل۔ رائما نے فوراً کہا، آئزل خوبصورت نام ہے۔ حدید نے زیر لب کہا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر رائما کی طرف دیکھا۔ کیا کرتی ہیں وہ؟ سر وہ بھی کالج میں پڑھ رہی ہے، رائما نے بتایا۔ وہ لاہور کی سٹی کالج میں پڑھتی ہے۔ حدید کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ سٹی کالج، اچھا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نگاہیں کہیں دور خلا میں تھی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے مس رائما، آپ جا سکتی ہیں۔ حدید نے اچانک کہا، آپ پروجیکٹ میں تبدیلی پر کام شروع کریں۔ رائما کو یقین نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور دھیرے سے آفس سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ تو اس نے دیکھا کہ بالکل برعکس تھا۔ حدید اپنے فون کی اسکرین پر اس نے دیکھا اور اپنے پی اے سلیم کو کال کی۔ سلیم، ایک کام ہے، مجھے لاہور کے سٹی کالج کے بارے میں تمام معلومات چاہیے۔ وہاں کی انتظامیہ، کون کون پڑھتا ہے، سب کچھ، جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہ ڈیٹا چاہیے۔ جی سر، ابھی انتظام کرتا ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ حدید نے فون رکھ دیا اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر آسمان کی وسعتوں میں گم تھی۔ اگلے چند دن حدید ملک کے لیے عجیب سے تھے۔ وہ اپنی مصروف شیڈیول سے وقت نکال کر لاہور کے سٹی کالج کے آس پاس چکر لگاتا۔ کبھی وہ کافی شاپ کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے اندر سے نکلتے طلبہ کو دیکھتا، کبھی دور سے کالج کے گیٹ پر نظر رکھتا۔ اس کا مقصد صرف ایک چہرہ دیکھنا تھا، آئزل کا چہرہ۔ ہر بار جب اسے آئزل نظر آتی تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ اسے ہنستے، سہیلیوں سے باتیں کرتے، کبھی لاپرواہی سے چلتے دیکھتا۔ ایک دن جب آئزل کالج سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی آ رہی تھی، ایک سیاہ چمچماتی ہوئی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشے نیچے اور اندر سے حدید ملک نے اسے دیکھا۔ آئزل، حدید نے پکارا۔ آئزل نے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں واضح ناپسندگی تھی۔ حدید مسکرایا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، گاڑی میں بیٹھو۔ میں کیوں بیٹھوں تمہاری گاڑی میں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ آئزل غصے سے بھڑک اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے کہیں بھی روک لو گے اور میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ حدید کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ اگر تم ابھی نہیں بیٹھی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ آئزل نے گھور کر اسے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ میں تمہاری طرح کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتی۔ حدید نے ایک لمحے میں دروازہ کھولا، گاڑی سے نکلا اور آئزل کا بازو پکڑ کر تقریباً زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اپنی حد میں رہو آئزل، تمہاری یہ بدتمیزی اور نہیں چلے گی۔ آئزل گاڑی میں بیٹھتے ہی چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، یہ اغوا کار ہے۔ حدید نے خاموشی سے گاڑی چلائی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ سیدھا ایک سنسان سڑک پر گاڑی لے گیا۔ آئزل کو اب واقعی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر رکی۔ حدید نے گاڑی بند کی اور آئزل کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی بے رحم چمک تھی۔
तुम सोचती हो तुम मेरी बातों का मजाक उड़ा सकती हो? हदीद ने धीरे धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा। तुमने मुझसे पंगा ले लिया है आइजल, और अब तुम इसकी कीमत अदा करोगी। आइजल का रंग फक हो गया। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो और बिल्कुल वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। हदीद ने कहा, अगर तुमने मेरी कोई बात टाली या फिर मुझसे बदतमीजी की तो तुम्हारी कजन राइमा, उसकी नौकरी तो जाएगी। मैं उसे अगवा करवा लूंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। आइजल की आंखें फैल गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हदीद के लहजे में गहरा सुकून था जो आइजल को मजीद खौफजदा कर रहा था। और अगर तुमने ये बात राइमा को बताने की कोशिश की या अपने घर वालों को, तो मैं तुम्हारे पूरा खानदान को खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गए। आइजल का सांस रुक गया। उसे हदीद की आंखों में देखा। वहां कोई मजाक नहीं था। ये शख्स वाकई खतरनाक था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम तुम क्या चाहते हो मुझसे? आइजल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। हदीब ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा जो आइजल को इंतहाई मकरवा लगी। तुम हर वो काम करोगी जो मैं कहूंगा और कोई सवाल नहीं करोगी, और ये सब राज रहना चाहिए। अगर कोई बात बाहर निकली तो नतीजा तुम देख चुकी हो। आइजल के जेहन में राइमा और अपने घर वालों के चेहरे घूम गए। उसे गहरा सांस लिया। उसकी सारी हठधर्मी और लापरवाही हवा हो चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं करूंगी जो तुम कहोगे। आइजल ने बड़ी मुश्किल से कहा। बस बस राइमा, और मेरे घर वालों को कुछ मत करना। हरी हदीद के चेहरे पर फतहमंदी की मुस्कुराहट छा गई। अच्छी लड़की, अब हम घर चलते हैं। इस वाकये के बाद आइजल की जिंदगी अक्सर बदल गई। हर सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकलती, हदीद मलिक की स्याह गाड़ी उसके गेट पर मौजूद होती। हदीद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा होता और उसे अपने साथ ले जाता। कॉलेज पहुंचने से पहले उसे किसी महंगे कॉफी शॉप पर ले जाता, जहां वो कॉफी पीते हुए उससे मुख्तलिफ बातें करता। आइजुल को जबरदस्ती उसकी दोस्त होने की अदाकारी करनी पड़ती। उसे नत नए कीमती तोहफे देता जिन्हें आइजल खामोशी से कबूल कर लेती। उसके दिल में एक ही खौफ बैठा था, राइमा और उसके घर वाले। इन मुलाकातों में गुफ्तगुओं का सारा बोझ हदीद पर ही था। वो बोलता जाता और आइजल बामुश्किल हूँ हाँ ठीक है जैसे अल्फाज जवाब देती। आइजल, तुम्हें पता है तुम्हारी ये मासूमियत बहुत दिलचस्प है। हदीद एक सुबह कॉफी पीते हुए बोला। तुम्हें अभी सुबह की सख्तियों का अंदाजा नहीं है। आइजल ने सिर्फ हूँ किया। और तुम्हें पता है जो कुछ मैं कहता हूँ वो होता है। हदीद ने कहका लगाया। मेरी बात ना मानने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। आइजल ने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हदीद ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन इनमें अब भी जिद है। इसे खत्म कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाँ, आइजल ने बामुश्किल कहा। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ आइजल, जो तुम सोच भी नहीं सकती। बस तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। आइजल ने खामोशी से कॉफी का कप पकड़े रखा। उसकी दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और वो इस कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। एक शाम आइजल अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसका चेहरा परेशानी से जर्द था। राइमा उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि आइजल कई दिनों से बदली हुई थी। वो खामोश रहती। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और वो हर वक्त सहमी सी रहती। आइजल, तुम्हें क्या हुआ है? राइमा उसके करीब बैठते हुए बोली। तुम कुछ दिनों से बहुत बदली हुई लग रही हो। पहले जैसी शरारती आइजल कहाँ गायब हो गई है? आइजल ने करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मुझे कुछ नहीं हुआ राइमा। उसकी आवाज में बेहिसी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? राइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे बताओ क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो और तुम्हारे चेहरे पर यह खौफ कैसा है? हदीद की धमकी आइजल के कानों में गूंजती। अगर तुमने ये बात राइमा को बताने की कोशिश की या अपने घर वालों को, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए। कुछ नहीं है, आइजल ने जल्दी से कहा और उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज का काम बहुत ज्यादा है ना, इसलिए थकी हुई हूँ। तुम परेशान ना हो। उसे फौरन एक झूठ गढ़ा। तुम झूठ बोल रही हो आइजल। राइमा ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी कजन हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। क्या ये इस हदीब मलिक की वजह से है? राइमा की आवाज धीमी हो गई क्योंकि उसे शक गुजर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आइजल का दिल जोर से धड़का। उसे तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं,
नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लहजे में सख्ती आ गई, जिसे देखकर राइमा भी हैरान रह गई। तो फिर क्या है? राइमा ने इसरार किया, मुझे साफ साफ बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम किसी मुश्किल में हो। आइजल की आंखों के सामने हदीद का वो बेरहम चेहरा घूम गया, और उसका वो जुमला कि तुम मेरी मलकियत हो, वो मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस कर रही थी। उसने राइमा की तरफ देखा। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई लफ्ज बाहर नहीं निकला। उसे मालूम था कि अगर उसने एक लफ्ज भी कहा तो राइमा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ठीक हूँ राइमा, उसने तकरीबन सरगोशी में कहा। बस मुझे अकेला छोड़ दो। राइमा को आयसर का ये बदला हुआ रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। आयसर घर में सबके सामने खुश रहने की अदाकारी करती, हंसती, बोलती, लेकिन उसके अंदर का खौफ उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इसी दौरान घर में एक अहम तब्दीली होने वाली थी। आयसर के बड़े भाई हनान और राइमा का रिश्ता पहले से ही तय था। दोनों खानदानों में इस वक्त मुकम्मल इत्तेफाक था। अब बस निकाह की तारीख का तयन बाकी था। हनान और राइमा की आपस में पहले से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों ही दूसरे को पसंद करते थे। एक शाम घर के सब बड़े इकट्ठे हुए। हनान के वालिद साहब ने खुशी से कहा, तो क्या कहते हैं भाई हनान बेटा, राइमा को बहू बनाने पर राजी हो? हनान ने शर्मा कर नजरें झुका ली। जी अब्बू, जो आपकी मर्जी। राइमा की वालदा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हमारी बच्ची का रिश्ता ऐसे नेक और शरीफ घराने में हो। बहस और मुबाहसे के बाद आखिरकार निकाह की तारीख तय हो गई, जो कि 2 माह की बात की थी। घर में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। ये सब कुछ आयजल के सामने हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो इस खुशी में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रही थी। उसके दिल में एक खिसक थी कि उस नाकाबिले बर्दाश्त बोझ को किसी के साथ बांट नहीं सकती। उसे अपने भाई हनान और राइमा की खुशी देखकर भी डरावना मुस्तकबिल नजर आ रहा था। वो हदीद मलिक के खौफनाक साए तले जी रही थी, और उसे मालूम था कि यह साया किसी भी वक्त उसके घर की खुशियों को निगल सकता है। उसने एक बार फिर हदीद की धमकियों को याद किया, और उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। कुछ दिन बाद आयजल ने अपने मामूल में एक तब्दीली महसूस की। सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकलती तो हदीद की गाड़ी उसके गेट पर मौजूद नहीं होती थी। पहले दिन तो उसे यकीन नहीं आया, लेकिन जब ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहा तो उसकी बुझी हुई आंखों में एक उम्मीद की चमक लौट आई। उसने राइमा से मोहतात अंदाज में पूछा, राइमा, तुम्हारे बॉस वो हदीद मलिक, वो सड़ियल अंकल तुमसे जीरती कैसे हो? राइमा ने जवाब दिया, अंकल नहीं है वो, हाँ थोड़े सड़ियल हैं, मगर आजकल सर कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। सुना है कि वो अहम मीटिंग ट्रिप पर बैरून मुल्क गए हुए हैं, शायद 1-2 माह के लिए। ये सुनकर आइजल के दिल पर जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। शुक्र है, उसने दिल ही दिल में कहा। ये उसके लिए एक ऐसी नेमत थी जिसका उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हदीद के जाने का मतलब था कि वो चंद दिन के लिए ही सही उसकी खौफनाक साय से आजाद थी। उससे शुक्र अदा किया, और अगले ही लम्हे उसके जहन से हदीद मलिक का ख्याल ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। घर में हनान और राइमा के निकाह की तैयारियां जोरों पर थी। आइजल भी खुशी खुशी उन तैयारियों में शामिल हो गई, जैसे वो दोबारा अपनी पुरानी शरारती और लापरवाह जिंदगी में लौट आई हो। वो राइमा के साथ मिलकर शादी के जोड़ों का इंतखाब करती, जेवरात दिखती और हंसती मजाक करती। उसकी हंसी जो कहीं गुम हो गई थी वापस आ चुकी थी। वो बोल चुकी थी कि कभी हदीद मलिक नामी कोई शख्स उसकी जिंदगी में आया भी था। उसे लगा था कि वो बेला टल गई है, और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो निकाह की तारीख का शिद्दत से इंतजार करने लगी, जिसे उस खुशी को पूरी तरह से जीना चाहती थी। हसनान और रायमा के निकाह का दिन था। घर को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था, और फूलों की महक फैली हुई थी। मेहमानों की गहमा गहमी अरूज पर थी। आइजल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने खूबसूरत बॉटल ग्रीन रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सुनहरे काम था। उसके बालों में ताज़ा फूल सजे थे, और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में आज फिर से वही शरारती चमक लौट आई थी। आइजल, तैयार हो गई? निकाह का वक्त हो रहा है। रायमा की आवाज बाहर से आई, बस आ रही हूँ। आइजल ने जवाब दिया, और आखिरी नजर खुद पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। नीचे आते ही हर किसी की निगाह उस पर टिक गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। काजी साहब कलामी पाक की तिलावत कर रहे थे, और फिजा में एक रूहानी सुकून छाया हुआ था।
इसी असना में अचानक घर के मरकजी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। ये एक स्याह चमचमाती मर्सिडीज थी। दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा पुरकशिश आदमी बाहर निकला। ये कोई और नहीं, हदीद मलिक था। वो सीधा निकाह की तकरीब की जाने पड़ा। उसने एक नफीस सूट पहना हुआ था जो उसकी शख्सियत को मजीद बावकार बना रहा था। हदीद की नज़र सबसे पहले आइजल पर पड़ी जो एक कोने में खड़ी हंस रही थी। उसे देखकर हदीद वहीं रुक सा गया। वो जैसे सहरज़दा होकर उसे देखता रह गया। आइजल का बॉटल ग्रीन लहंगा, उसके चेहरे की खूबसूरती, उसकी हंसी, ये सब कुछ हदीद को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उसे सोचा, इतनी खूबसूरत, उसका अंदाज ही निराला है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही अज़ल है जो हमेशा सहम कर उसके पास बैठी रहती थी। रायमा ने जब हदीद को आते देखा तो उसकी आंखों में हैरत और परेशानी दोनों थी। वो तेजी से उसकी तरफ पड़ी। सर, आप तो बैरून मुल्क थे ना? हदीद ने मुस्कुराकर रायमा की तरफ देखा। हाँ रायमा, बस काम से फारिग होकर सोचा कि तुम मेरी ऑफिस स्टाफ हो और तुम्हारी निकाह पर ना हो, ये कैसे हो सकता है? उसने रायमा के सर पर शफकत से हाथ फेरा। बहुत मुबारक हो तुम्हें, हनान बहुत अच्छा लड़का है। रायमा का दिल पसीज गया। उसे हदीद का ये नरम रवैया हैरान कर रहा था। शुक्रिया सर। फिर उसे अपने खानदान से मुतारिफ करवाने लगी। ये मेरे वालिद हैं, ये वालदा, और ये रायमा ने हासिल की तरफ इशारा किया जब हदीद को देखकर यह वस्ता हो चुकी थी। और ये मेरी कजन आइजल। आइजल की सारी खुशी, सारी हंसी, सब कुछ एक लम्हे में गायब हो गया। उसका चेहरा फक हो गया। फिर उसकी आंखों में वही पुराना खौफ लौट आया। वो थर थर कांपने लगी। उसे याद आया कि वो आखिरी दम की जब हदीद उसे कॉलेज के बाहर मिला था। वो समझी थी कि वो बला टल गई है। हदीद ने आइजल की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक पुरस्कार चमक थी। आइजल, कैसी हो तुम? आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन आइजल के लिए ये नरमी उसे जहर लग रही थी। आइजल ने बमुश्किल अपने होंठ खोले। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज हलक में दब कर रह गई थी। हदीद एक लम्हा रुका। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा रायमा, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। वो कहते हुए एक तरफ हट गया। आइजल की सांस तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसका डरावना ख्वाब हकीकत बन चुका है। अभी निकाह की रस्म मुकम्मल ना हुई थी कि अचानक पूरी लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। मेहमानों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे अपने मोबाइल के फोन्स की टॉर्च रोशन की। इस हंगामी खेजी में जब सबका ध्यान बटा हुआ था, हदीद मलिक ने मौका का फायदा उठाकर से तेजी से आइजल का हाथ पकड़ा। आइजल चौंकी। उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हदीद की गिरफ्त मजबूत थी। हदीद उसे खींचता हुए कोने की तरफ ले गया जहाँ निस्बतन ज्यादा अंधेरा था। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? आइजल ने सरगोशी में कहा। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। हदीद ने उसे दीवार से लगाया। उसके हाथ आइजल के चेहरे पर थे। अंधेरे में भी आइजल को उसकी आंखों की चमक महसूस हो रही थी। डरती हो मुझसे? हदीद ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में गहरा सुकून था। डरना चाहिए। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था ना? आइजल ने बेचैनी से कहा। हदीद हंसा। मैं तो उस समय का इंतजार कर रहा था आइजल, जब तुम पूरी मेरी मलकियत में बन जाओगी। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ। आइजल ने गुस्से से कहा, अगरचे उसका दिल खौफ से डूबा जा रहा था। तुम हो। हदीद ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितना मुतासिर किया है। तुम्हारी वो बेबाकी, वो लापरवाही, उसने मुझे पागल कर दिया है। पागलपन तुम पर हावी है। आइजल ने कहा। शायद। हदीद ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। जब से तुम्हें देखा है ना, सुकून ही नहीं है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, हर अदा मेरे जहन में बस गई है। क्या बकवास कर रहे हो? आइजल ने झटके से अपना चेहरा हटाना चाहा, मगर हदीद ने जाने नहीं दिया। बकवास नहीं, ये सच है। हदीद ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें चाहता हूँ आइजल, शिद्दत से चाहता हूँ। तुम मेरी हो और अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आइजल की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हदीद के लहजे में एक सर्द यकीन था। मैंने तुम्हारी रग रग पर कब्जा कर लिया। अब तुम जब भी सांस लोगी, मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। तुम्हें क्या लगता है? आइजल की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे सिर्फ डरा सकते हो, लेकिन तुम मेरी सोच पर काबू नहीं पा सकते। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत? हदीद ने कहका लगाया। बहुत जल्द ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम मेरी दीवानी हो जाओगी।
उसने आइज़ल के चेहरे को दोनों हाथों से थामा। मैं तुम्हें ख्वाबों में तुम्हारे आऊँगा, तुम्हारे हर लम्हे में शामिल होऊँगा, तुम्हें भागने की कोशिश या कोई जगह ही नहीं मिलेगी। आइज़ल ने अपनी आँखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे हदीद का वजूद उसे निगल रहा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। हदीद ने उसके कान में सरगोशी की। बहुत जल्द आइज़ल, बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनोगी। ये महज़ धमकी नहीं, ये मेरा वादा है और तुम जानते हो कि मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। इससे पहले कि आइज़ल कुछ कह पाती, लाइट वापस आ गई। हर तरफ रोशनी फैल गई। हदीद एक लम्हे के लिए रुका, फिर एक मुस्कुराहट के साथ आइज़ल को वहीं छोड़कर मुजमा में वापस शामिल हो गया। आइज़ल वहीं खड़ी रह गई। उसका जिस्म काँप रहा था और उसकी आंखों में दहशत के साए गहरे हो चुके थे। उसके भाई के निकाह का दिन उसकी अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन बन चुका था। निकाह की रस्म ख़त्म होते ही हर तरफ मुबारक सलामत की आवाज़ें गूंजने लगी। हनान और राइमा के चेहरे पर खुशी की चमक थी। आइसल अभी तक हदीद के साथ हुई गुफ्तगू के ज़ेरे असर थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसी लम्हे उसके बाबा इब्रार साहब उसके करीब आए। उनके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। आइसल बेटा, कहाँ गुम हो? इब्रार साहब ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। आओ तुम्हें अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ। और वो उनके साथ बेटे वलीद से भी। आइसल ने हिचकिचाते हुए अपने वालिद के पास चलना शुरू किया। वो दोनों एक मुअज़्ज़िज़ जोड़े की तरफ बढ़े। ये है मेरे दोस्त मिस्टर कामरान और ये उनकी अहलिया मैडम फोजिया। इब्रार साहब ने तारुफ करवाया। फिर उन्होंने एक खूबसूरत नौजवान की तरफ इशारा किया और ये इनके बेटे हैं वलीद। वलीद ने मुस्कुराकर आइज़ल को देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो बहुत खुश अखलाक और मुतासिर कन शख्सियत का मालिक था। वलीद की वालदा फौजिया बेगम ने आइज़ल को एक नज़र में ही पसंद कर लिया। उनकी आंखों में माँ जैसी मोहब्बत छलक रही थी। माशाल्लाह, आइज़ल बेटी तुम तो बहुत हसीन हो। फौजिया बेगम ने आइज़ल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। फिर वो फौरन अबरार साहब की तरफ मुड़ी। इब्रार, मेरा तो दिल कर रहा है कि आज ही वलीद के लिए आइज़ल का हाथ मांग लूँ। हमें आइज़ल जैसी खूबसूरत और सलीकामंद बहू चाहिए थी। इब्रार साहब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। फौजिया, ये तो मेरे लिए आज़ाज़ की बात होगी। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मैं हमेशा से यही चाहता था। आइज़ल ये सुनकर घबरा गई। उसकी नज़रें देखकर एक खास सिमत की तरफ उठी। कुछ दूरी पर हदीद मलिक एक सतून के पीछे खड़ा था। उसकी सर्द बेरहम निगाहें सीधी आइज़ल पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी जो आइज़ल को मजीद खौफजदा कर रही थी। आइज़ल को लगा जैसे उसका दिल हलक में आ गया है। आइज़ल की वालदा आइमा बेगम भी वहां पर मौजूद थी। फौजिया बेगम ने उनकी तरफ देखकर कहा, आइमा, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा? आइमा बेगम ने मुस्कुराकर आइज़ल को देखा और कहा, कैसा इतराज़ फौजिया? आइज़ल हमारी लाडली है। जहाँ उसकी खुशी वहाँ हमारी खुशी। वलीद माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। इब्रार साहब ने खुशी से वलीद और फौजिया बेगम की तरफ देखा। फिर तो क्या सोचना, मैं तो कहता हूँ कि आज ही इसी मुबारक तकरीब में इस मंगनी का भी ऐलान कर देते हैं। हर कोई खुशी से झूम उठा। वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इब्रार साहब ने फौजिया बेगम और वलीद के साथ लिया। आओ फिर स्टेज पर चलकर सबको ये खुशखबरी सुना देते हैं। जैसे ही इब्रार से वलीद का हाथ थामे स्टेज के जाने पड़े और माइक पर हाथ बढ़ाया ताकि मंगनी का ऐलान कर सके। एन उसी लम्हे हदीद मलिक तेज कदमों से चलता उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून लेकिन गहरी मुस्कुराहट थी। हदीद ने माइक थामा और इससे पहले कि इब्रार साहब कुछ समझ पाते, उससे पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, मैं यहाँ एक ज़रूरी ऐलान करने आया हूँ। उसकी नज़रें सीधी आइज़ल पर थी जो हुजूम में गुम होने की कोशिश कर रही थी। दरअसल मुझे आइज़ल से मोहब्बत है। हदीद की आवाज़ पूरी तकरीब में गूंजी। एक लम्हे के लिए हर तरफ सुनाटा छा गया। सबकी नज़रें आइज़ल पर जम गई। आइज़ल का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल चुकी थी। हदीद ने मजीद कहा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आइज़ल को भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। उसे आइज़ल की तरफ देखा। उसकी नज़रें चैलेंज कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और पिछले कुछ अरसे से हम रोज़ मिलते हैं। हमारी मोहब्बत बहुत गहरी है और हम दोनों जल्द शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर महफिल में जैसे जलजला आ गया। हर कोई हैरत से आइज़ल को तरफ देख रहा था। उसकी मासूम सूरत पर सवालिया निगाहें थी। आइज़ल को लगा जैसे ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। उस पर शर्मिंदगी और गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसका खौफ उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था।
इब्रार साहब और आइमा बेगम सख्ते में थे। उनके चेहरे पर गुस्से और सदमे से सुर्ख हो चुके थे। फौजिया बेगम और वलीद के चेहरे पर भी गहरे रंज और नागवारी छा गई। ये झूठ है, आइजल ने चीख कर कहा। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं इसे जानती भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हदीद ने एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ आइजल की तरफ देखा। डरो मत आइजल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बस सबको सच बता रहा हूँ। फिर हदीद ने इजिप्ट से अपना मोबाइल निकाला और चंद तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई। और वो तस्वीर आइजल की थी। मुख्तलिफ मकामात पर हदीद के साथ कॉफी पीते, उसकी गाड़ी में बैठे, और कुछ तस्वीर में आइजल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी, जिसके खौफजदा चेहरे की अदाकारी का नतीजा थी। तस्वीर दिखाते उसने माइक पर कहा, ये देखें, ये सब सबूत है। हम दोनों का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये देखते ही फौजिया बेगम गुस्से से आग पे गोला हो गई। देखिए इब्रार साहब, आपकी बेटी कैसी है? मेरे बेटे वलीद की तो बदनामी कर दी इसने। ये लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं है। ऐसी लड़की का रिश्ता तो मैं कभी भी कबूल नहीं करेंगे। वो गुस्से में वलीद का हाथ पकड़कर तफरीब से निकल गई। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। लोग आइजल को गलत निगाहों से देख रहे थे, उसके किरदार पर सवाल उठा रहे थे। इब्रार साहब का सर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। आयमा बेगम का चेहरा भी शर्म से झुक चुका था। इब्रार साहब ने लड़ती हुई आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। आज ही इसी वक्त आइजल का निकाह हदीद से करवाया जाए और इसे यहीं से रुखसत कर दिया जाए। उनका लहजा ऐसा था कि कोई भी एतराज न कर सका। उन्हें लगा कि इस जिल्लत से बचने का यही वाहिद रास्ता है। आइजल ने रोते हुए अपने वालिद की तरफ देखा। बाबा, नहीं, ये झूठ कह रहा है, मेरी बात सुने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी वालदा भी खामोश खड़ी थी। सदमे और शर्मिंदगी ने उन्हें गूंगा कर दिया था। हदीद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि उसने अपनी चाल कामयाबी से चल दी है। कुछ ही देर में उसी तकरीर में उसी काजी के जरिए आइजल का निकाह हदीद मलिक से पढ़ाया जाने लगा। आइजल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अज़्म की शक्ल दी। कबूल है। जब काजी ने तीसरी बार पूछा तो आइजल ने गहरी सांस ली और मजबूत इरादे के साथ कहा, मुझे कबूल है। उसके दिल में एक ही ख्याल था, हदीद मलिक, तुमने मुझे बेइज्जत किया है, मेरी जिंदगी तबाह की है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरी मासूमियत और लापरवाही को कम समझा है, लेकिन अब तुम्हें मेरी जिद और अज़्म का सामना करना पड़ेगा। तुमने सोचा कि तुमने मुझे जीत लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। इसे हदीद की धमकियां याद आई। अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम्हारी कजन राइमा, उसकी नौकरी तो जाएगी, मैं उसे अगवा करवा लूंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर तुमने ये बात राइमा को बताने की कोशिश की या अपने घर वालों को, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। इन धमकियों ने उसे इस वक्त खामोश करवाया था, लेकिन अब उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। वो अहद कर चुकी थी कि वो हदीद को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। निकाह की रस्म ख़त्म हुई और हर तरफ मुबारक सलामत की सदाएं। आइजल को रुखसत कर दिया गया और अपने बाबा और मामा राइमा को वो अलविदा कहते बेबसी से हदीद की गाड़ी में आ बैठी थी। हदीद ने गाड़ी स्टार्ट की और खामोशी से ड्राइव करता रहा। उसकी नज़रों में एक इत्मीनान और फातिहाना चमक थी। और जब आइजल का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, रात के हदीद की आलिशान हवेली के रोशन बोर्च में गाड़ी रुकी। नौकरों और चौकीदारों की एक फौज पहले से मौजूद थी, जो दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। आइजल को हदीद के साथ घर में लाया गया, जहाँ घर में सिर्फ मुलाजमा ही थी, उसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। रिश्तेदारों को उसने बताया नहीं था और माँ बाप बहुत पहले मर चुके थे। वो अकेला उस महलनुमा घर में रहता था। इस्तकबाल के बाद आइजल को एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में ले जाएगा, जो यकीनन हदीद का कमरा था। हदीद कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी, जिसे आइजल ने नफरत से देखा। लो, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई, हदीद ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा तंज का तासुर था। आइजल ने फौरन पलटकर उसे घूरा और उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। मंजिल? ये मेरी मंजिल नहीं, तुम्हारी कैद है। उसकी आवाज में तलखी थी। तुमने जो कुछ आज किया उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी, हदीद मलिक। हदीद हंसा। बदला? तुम मुझसे बदला लोगी? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत जल्द मेरे रंग में रंग जाओगी। उसके करीब आया। खुश फहमी है तुम्हारी, आइजल ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें अपना शौहर कभी नहीं मानूंगी।
तुम सिर्फ एक जबरदस्ती के रिश्ते की पहचान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हदीद एक लम्हे को रुका। उसके चेहरे पर नरमी की जगह एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। एक दिन तुम खुद मुझे अपना शौहर मानोगे आइजल, ये मेरा वादा है। ये तुम्हारी भूल है। आइजल ने उसे पलट कर जवाब दिया। तुमने मुझे बेइज्जत किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। हदीद ने कोई जवाब ना दिया, बस एक कदम आगे बढ़ा और उसके जोड़े में बंधे बालों में हाथ डाला। उसने एहतियात से उसके बालों से फूल निकाले और उसकी पिनें हटाई। एक एक करके जब उसके खूबसूरत घने बाल आजाद हुए, उसके शाने पर बिखर गए, तो हदीद ने गहरी सांस ली। खूबसूरत। वो जेर लब बड़बड़ाया। उसे आइजल के चेहरे पर एक नजर डाली जो अब भी उससे और बेबसी से सुर्ख था। और फिर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर चला गया। आइजल वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, अज़्म और बदले की आग के थे। अगली सुबह हदीद मलिक की जिंदगी में वो तूफान आने वाला था, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो सुबह सवेरे उठा, तरोताजा हवा हो तरोताजा होकर नीचे आया। नाश्ते की मेज पर नौकर पहले ही सब कुछ सजा चुके थे। हदीद ने एक कप कॉफी खुद को सर्व की और पहला घूंट पिया। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर आया। उसने फौरन कॉफी थूक दी। ये क्या है? उसने भनवे से गेड़े। इसमें नमक क्यों है? बावर्ची खाने से आवाज आई। नहीं सर, हमने तो चीनी डाली थी। हदीद ने एक और घूंट लिया। उसका मुंह कड़वा हो गया। इसमें नमक है। इसी स्नान में आइजल नाश्ते से चलती हुई नाश्ते की मेज पर आई। उसने एक नज़र हदीद के बिगड़े हुए चेहरे पर डाली और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, ओह क्या हुआ? लगता है आज सुबह नमक का जायका कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। हदीद ने उसे घूरा, लेकिन उसकी नजरों से बेपरवाह टोस्ट का एक पीस उठाने लगी। और हाँ, ये टोस्ट भी बहुत नरम लग रहा है, हदीद ने कहा। टोस्ट का एक नवाला लिया और फौरन उगल दिया। ये टूथपेस्ट का जायका क्यों आ रहा है? आइजल हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक फातिहाना चमक थी। ओह, लगता है आज कुक ने कुछ नया तजर्बा किया है। हदीद गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो खुद को संभाल गया। ठीक है, मैं बाद में खा लूंगा। वो ऊपर अपने कमरे में गया ताकि ऑफिस के लिए तैयार हो सके। उसने अपनी पसंदीदा नीले रंग की शर्ट उठाई, लेकिन जैसे ही बटन लगाने लगा उसे मालूम हुआ कि सारे बटन ही गायब हैं। ये क्या? वो गुस्से से चीखा। आइज़ा बाहर से आवाज सुनकर मुस्कुराई। खदीद के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे सुर्ख रंग की शर्ट पहननी पड़ी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मुंह बना हुआ था। वो जूतों के रेक की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके सारे स्याह जूते के तस्मे गायब थे। ये क्या मुसीबत है? वो बुड़बुड़ाया। उसे मजबूरी में सुर्ख शर्ट के साथ सफेद जॉगर्स पहनने पड़े। वो आईने में खुद को देखकर गुस्से से सर झटकने ही वाला था कि आइजल उसके सामने से गुजरी। उसने एक नज़र हदीद के सुर्ख लिबास और सफेद जॉगर्स पर डाली और उसे देखकर वो इतरा कर गुजर गई। कोई तो आज जोकर लग रहा है। वो इतरा कर पास से गुजरी। हदीद का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन वो खुद पर काबू रखे रहा। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आइजल। क्या? अब मैंने क्या किया? आइजल ने मासूमियत से कंधे उचकाते पूछा। आंखों में हैरत थी। हदीद ने उसे घूरा और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और आइसल मजे से बेड पर बैठी अगले सीन का सोचने लगी, क्योंकि जो कुछ वो इसकी गाड़ी के साथ कर चुकी थी अब इंजाम भुगतना था। नीचे हदीद जल्दी से अपनी चमचमाती मर्सिडीज में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। चंद किलोमीटर के फासले पड़ी गाड़ी में झटका लिया और रुक गई। फ्यूल केज को देखा तो बिल्कुल खाली था। क्या बकवास है! हदीद ने गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारा। उसे याद आया कि कल शाम जब वो गाड़ी खड़ी करके घर में दाखिल हुआ था तो टैंक भरा हुआ था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला ताकि अपने पीए सलीम को कॉल कर सके, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन खोला पासवर्ड तब्दील हो चुका था। कई बार गलत पासवर्ड डालने के बाद फ़ोन लॉक हो गया। लानत है! वो जी भर के बेजार हुआ। हदीद मलिक, जो लाहौर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, आज पहली बार सुनसान सड़क पर पैदल चलने पर मजबूर हो गया था। उसके चेहरे पर पसीना था और वो गुस्से से भरा हुआ था। वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो चुका था। ऑफिस पहुंचकर उसने सलीम को डांटा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सब किसकी कारस्तानी है। उसके जहन में आइजल का मासूम सा चेहरा और शरारती मुस्कुराहट घूम रही थी। ये तो अभी आगाज था। आइजल ने हदीद की जिंदगी को मजीद अचीरन करने का फैसला कर लिया था। रोजाना कोई नया हादसा, कोई नई शरारत उसका इंतजार कर रही थी। कभी वो फर्श पर पानी गिराकर उसे फिसलाने की कोशिश करती, कभी उसकी शर्ट में खुजली का पाउडर डाल देती। हदीद के लिए आइजल एक ऐसी बला बन चुकी थी जिसे उसे खुद गले लगाया था और उसे उसके साथ जीना था।
वो सब्र और तहम्मुल से ये सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि सब उसी का किया धरा है। उसे बस एक ही दिन का इंतज़ार था जब आइज़ल की नफ़रत को मोहब्बत में बदल देगा। हदीद की ज़िंदगी को अजीरन करने के लिए आइज़ल की खराफात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। उन्हीं मुसीबत भरे दिनों में से एक दिन आइज़ल ने एक और खराफाती काम करने की ठानी। उसे सीढ़ियों पर तीर डाल दिया। वो बस शरारत कर रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। हदीब भी उसे ये सब करते देख चुका था, लेकिन उसने वही किया जो आइज़ल चाहती थी। वो जानबूझकर नंगे पाँव सीढ़ियों पर आ गया। फिर वो जो सीढ़ियों से गिरा तो गिरता ही चला गया। उसका सर सीढ़ियों से टकराया और एक गहरा ज़ख्म आ गया। आइज़ल की आंखें हैरत से फैल गई। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ छा गया। वो भागी और हदीद के पास जाकर चीखने लगी। उसे फौरन एम्बुलेंस बुलाया और पछतावे की गहरी लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। हदीद को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। खून खून ज़्यादा बहने की वजह से डॉक्टर ने इसकी हालत तशवीशनाक बताई। हदीद के अस्पताल में दाखिल होने की खबर सुनकर आइज़ल के घर वाले भी फौरन अस्पताल पहुंच गए। इब्रार साहब जो आइज़ल के बाबा थे, उसके करीब आए। उनके चेहरे पर गम और फिक्रमंदी के मिले जुले तासुरात थे। आइज़ल बेटी, इब्रार साहब ने दुख भरी आवाज़ में कहा, हदीद ने हमें सब कुछ बता दिया है। आइज़ल ने हैरत से अपने बाबा की तरफ देखा। क्या बताया बाबा? उसने बताया कि तुम उसे पसंद नहीं करती थी। इब्रार साहब ने कहना जारी रखा, और उसने निकाह में झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मंगनी किसी और से होते नहीं देख सकता था। इब्रार साहब की आंखों में नमी थी। उसे बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है आइज़ल। उसने रो रो कर हमसे सबसे माफ़ी मांगी है। ये सुनकर आइज़ल मज़ीद शर्मिंदगी में खड़ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया। वो रात भर हदीद के लिए दुआएं मांगती रही, पछतावे की आग में जलती रही। अगली सुबह हदीद की हालत में बेहतरी आई। वो खतरे से बाहर था और अब डॉक्टर ने उसे होश में करार दिया। आइज़ल फौरन उसके कमरे में गई। हदीद अभी भी कमज़ोर लग रहा था। उसका सर पट्टियों में लिपटा हुआ था। आइज़ल ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, हदीद, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। हदीद ने अपनी आंखें खोली और आइज़ल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मस्नूई नाराज़गी थी, जैसे वो अभी भी उससे खफा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी कराह के साथ नजरें फेर ली। आइज़ल को उसकी मस्नूई नाराज़गी महसूस हो रही थी, और उसे ये देखकर मज़ीद शर्मिंदगी हुई कि उसकी एक शरारत ने इतना संगीन रूप ले लिया था। हदीद की अस्पताल से घर वापसी पर आइज़ल उसे मनाने में जी जान से लग गई थी। उसका मासूम चेहरा पछतावे से भरा हुआ था, और वो किसी भी तरह हदीद की नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी। सबसे पहले उसे खुद अपने हाथों से हदीद के लिए खाना बनाने का सोचा। उसने किचन में जाकर हदीद की पसंदीदा डिश बनाने की कोशिश की, मगर नतीजा अच्छा नहीं निकला। जब खाना मेज़ पर रखा गया तो उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि हदीद ने उसे देखते हुए मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। मुझे भूख नहीं है, हदीद ने नाराज लहजे में कहा और अपना रुख फेर लिया। आइज़ल का दिल दुखा, लेकिन वो खामोशी से उठ गई। आइज़ल के जाने के बाद हदीद को भूख लगने लगी। उसे झुककर किचन की तरफ देखा, फिर दबे कदमों जाकर आइज़ल का बना हुआ खाना उठाया। उसने एक नवाला चखा। वाकई जायका अच्छा नहीं था, लेकिन जाने क्यों उसके दिल में आइज़ल के लिए एक नरमी सी पैदा हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा खाना खा गया। इसी दौरान आइज़ल को अचानक पता चला कि अगले दिन हदीद की सालगिरह है। ये सुनकर उसकी आंखों में एक नई चमक उठ गई। उसने फौरन हदीद के लिए एक सरप्राइज पार्टी का अरेंज किया। उसने अपने भाई हनान और राइमा को भी उसमें शामिल किया, ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। शाम को जब हदीद ऑफिस से आया तो हर तरफ अंधेरा था। उसे लाइट ऑन की तो सबने एक साथ हैप्पी बर्थडे की आवाज़ लगाई। हदीद एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे पर नाराज़गी अभी भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी महसूस हो रहा था। आइज़ल उसके करीब आई, उससे कान पकड़े और मासूमियत से बोली, हदीद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में नमी थी और उसका चेहरा पछतावे से लाल हो रहा था। आइज़ल की इस अदा पर हदीद का दिल पसीज गया। उसने आइज़ल के हाथों को अपने हाथों में लिया और एक गहरी सांस ली। बस बस, रहने दो, मैं अब नाराज़ नहीं हूँ। उसके लहजे में अब नरमी थी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसके बाद सबने मिलकर केक काटा। हदीद ने केक का एक टुकड़ा आइज़ल को खिलाया और आइज़ल ने भी उसे खिलाया। पार्टी में हंसी मजाक का माहौल था। जब मेहमान चले गए और घर में खामोशी छा गई तो हदीद और आइज़ल कमरे में अकेले रह गए।
कमरे में मध्यम रोशनी थी। हदीद ने आइजल का हाथ थामा और उसे अपने करीब किया। आइजल, हदीद ने नरमी से कहा। उसकी आंखों में गहरा प्यार छलक रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब तुमने आज कान पकड़कर माफ़ी मांगी तो मेरा दिल पसीज गया। मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी हो और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। आइजल शर्मा कर हदीद के गले लग गई। हदीद ने अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उनकी निगाहें मिली और हदीद ने आहिस्ता से अपने लब आइजल के लबों पर रख दिए। एक नरम बूसे के बाद आइजल के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। हदीद ने मुस्कुराते उसके बालों में उंगलियां फेरी और फिर उसकी गर्दन पर बोसा दिया, जो आइजल के लिए एक नया एहसास था। कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाजें थी और दिलों की धड़कनों का शोर। हदीद ने आइजल को अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया, जैसे वो उसे अपनी दुनिया में समो लेना चाहता हो। आइजल ने भी उसकी कुर्बत में खुद को महफूज महसूस किया। हदीद ने आइजल के लिए खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया था। वो उसे लेकर कराची के एक निजी साहिल पर पहुंचा, जहाँ एक रोमांटिक डिनर का एहतमाम था। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी और आइजल ने साहिल का मंजर देखा, उसकी आंखें हैरत से खुल गई। हल्की सी हवा चल रही थी, लहरों का मदम शोर था और रेत पर एक खूबसूरत मेज सजी हुई थी, जिसके चारों तरफ टिमटिमाती मोमबत्तियां वो फूल थे। मेज पर आइजल की पसंदीदा डिशेस सजी थी। ये सब मेरे लिए है? आइजल ने खुशी से पूछा। उसके चेहरे पर मुद्दतों बाद खिलने वाली मासूम मुस्कुराहट थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी आइजल। हदीद ने मुस्कुराते हुए खास का हाथ थाम कर मेज की तरफ ले गया। आइजल ने देखा कि वहां सजी हर चीज उसकी पसंद की थी। झींगा, बिरयानी, चिकन कढ़ाई और उसकी सबसे फेवरेट बटरफ्लाई ब्राउनीज वो किसी सदियों की बुक की तरह खाने पर टूट पड़ी। उसने खूब सेर होकर खाया, बगैर किसी शर्मिंदगी के। हदीद उसे देखकर मुस्कुरा रहा था जब आइजल प्लेटर के बाद प्लेटर साफ कर रही थी और हदीद ने उसे छेड़ा। अरे बुक्कर, जरा आहिस्ता, सारा खाना अकेली खाओ जाओगी क्या? आइजल ने मुंह में खाना बड़े उसे घूरा और मुंह बसोरा। मैं बुक्कर नहीं हूँ, और अगर मैंने सारा खा भी लिया तो तुम्हें क्या? वैसे भी ये सब मेरे लिए ही तो है। हदीद हंस पड़ा। हाँ हाँ, सारा तुम्हारे लिए है। बस ये ना कहना कि बाद में पेट दर्द हो रहा है। नहीं होता मुझे पेट दर्द, आइजल ने नखुद से कहा। फिर भी उसका मुंह थोड़ा सा लटक गया। हदीद ने देखा कि उसकी आइजल नाराज हो रही है। फौरी तौर पर अपनी कुर्सी से उठा और आइजल के करीब आकर उसके गाल थपथपाए। अच्छा मेरी शहजादी, नाराज ना हो, तुम बस सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम जितना चाहो खाओ, मैं तुम्हारे लिए और मंगवा लूंगा। उसने मोहब्बत से आइजल का माथा चूमा। आइजल के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने हदीद की तरफ देखा और बोली, वैसे एक बात कहूँ? कहो। हदीद ने नरमी से कहा, तुम वाकई बहुत प्यार करते हो मुझसे, है ना? आइजल ने शरारत से पूछा। हदीद ने उसका हाथ थामा और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ आइजल, बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। साहिल पर चांद की रोशनी में हदीद और आइजल ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। उनके दिलों की दूरियां खत्म हो चुकी थी। आइजल ने हदीद की आंखों में वो इखलास और मोहब्बत देख ली थी, जिसका उसे पहले कभी अंदाजा नहीं था। उसने भी हदीद को अपने दिल से कबूल कर लिया था। उनकी जिंदगी का वो हिस्सा जहाँ हदीद ने जबरदस्ती उसे अपनी कैद में लिया था, अब एक मोहब्बत और भरोसे के रंगों से रंगीन हो चुका था। हदीद ने उसे हमेशा की तरह छेड़ा, उसे प्यार किया और आइजल ने अपनी तमाम शरारतों और मासूमियत के साथ उसे जवाब दिया। उनका रिश्ता महज एक जबरदस्ती का बंधन नहीं था, बल्कि मोहब्बत, समझबूझ और मजबूत रिश्ते की एक नई मिसाल बन चुका था। आइजल की जिंदगी में अब खौफ की जगह इत्मीनान और खुशी ने ले ली थी। वो जान चुकी थी कि हदीद मलिक की मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहाँ नफरत की जगह मोहब्बत ने और खौफ की जगह यकीन ने ले ली थी।